This is the answer writing session. So this is the answer writing session. Got the point? यहाँ पर हमेशा कुछ रूल्स होते हैं. रूल्स फॉर मेंस आंसर राइटिंग. उन रूल्स को ध्यान में रख के आंसर लिखा जाएगा. ठीक है. There are certain rules for means answer writing. पहला rule number 1. Rule number 1 is always understand demand of the question. Demand of the, आप कुछ भी नहीं लिख सकते. You have to understand the demand of the question. What the question is demanding exactly. तो उसके लिए always identify keywords given in the question. ये सब लिखते चलिए. Given in the, जब तक ये सब नहीं पता होगा तब तक आप कोई आंसर नहीं लिख पाएंगे. Always identify keywords given in the questions. Try to break up questions if given in parts. If given in parts. Got the point? Now we have rule number 2. What is rule number 2? Always try to create objectivity in your answer. Try to create objectivity in your answer. That is, your answer should be, your statement, your answer should be supported by, facts, figures. Got the point? मैप्स. मतलब अपनी बातों को इन चीज़ों के साथ सपोर्ट करें. Is it done? आए ना? तो पहला क्या है? Always understand the demand of the question. दूसरे में क्या है? Always try to create objectivity. जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि if I say women empowerment is a key to control population. Suppose I said women empowerment is a key to control population. ये बस सबको मालूम है कि if we do the women empowerment, that may be playing a important role in controlling the population. But how will you substantiate this fact? How will you support this answer by facts? तो आप कहेंगे, जब आप ये बोलेंगे कि according to National Family Health Survey, it is a pattern being observed that those women who are graduate and postgraduate, so the number of children per woman is 2 to 2.5, and those women who has not even passed class 8, the number of children per woman is exceeding 5 or 6 also. Got the point? This clearly shows that the education is an important component in controlling the population, making the women empowered. Yes or no? ये बोलने से आपका आंसर में मैच्योरिटी आ गई. क्या आ गया? ऐसे आप कितना ही बोलते रहे वुमेन एम्पावरमेंट, यस और नो, वो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा. मगर द मोमेंट यू हैव इंसर्टेड दिस स्टेटमेंट, उसी समय आपका मार्क्स तय हो जाता है. उसी समय आपका मार्क्स क्या हो जाता है? तय हो जाता है. इज इट डन? तो कहने का मतलब है कि स्टडीइंग इन अ क्लास एंड गेनिंग अ मार्क्स इज अ डिफरेंट थिंग. जो आप क्लास से पढ़ रहे हैं और जो आप मार्क्स को गेन कर रहे हैं, दोनों में बहुत
कल ही हमने आपको बताया था कि एक को कम आता है मगर फिर भी ज़्यादा नंबर पाएगा, एक को ज़्यादा आता है फिर भी कम। ऐसा कैसे हो रहा है? इज इट डन? ऐसा इस वजह से होता होगा। इज इट डन? नाउ रूल नंबर 3, नाउ वी हैव रूल नंबर 3, डोंट लूज subjectivity in your answer. Don't lose subjectivity in your answer. Got the point? In fact, subjectivity and objectivity both are important components. Both are important components in the answer. Got the point? जैसे क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज वुमेन एम्पावरमेंट is a key to control population. Is a key to control population. Explain. So explaining women empowerment only will not work. This is not subjectivity. But explaining women empowerment, how women empowerment is controlling population, is a subjectivity. तो पहला, स्टूडेंट वन राइटिंग ओनली अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट so is losing subjectivity, is losing subjectivity. ये सुनो, तो आंसर क्या हो गया? इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? उसने रॉन्ग डायरेक्शन पिक कर ली। ये सुनो, मगर कोई उसी जगह दूसरा स्टूडेंट है, स्टूडेंट 2, एक्सप्लेनिंग how women empowerment is linked to population control, is holding subjectivity, is holding सब्जेक्टिविटी। एंड आंसर ऐसे में क्या होगा? आंसर क्या है? राइट डायरेक्शन में। ये सुनो, कैसा लग रहा है? सब्जेक्टिविटी का मतलब है कि क्या पूछा गया है उसी रेलेवेंस में बात करिए। दोस्त स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स 90% केस में वो वुमेन एम्पावरमेंट समझा के आ जाएंगे। कोई आता वाता तो है नहीं, दिमाग चल नहीं रहा है, 3 घंटे काटने ही है, तो कुछ भी लिख के चले आने से नंबर। तो जो कॉम्पिटिटिव ब्रेन होता है, जो आंसर लिखने वाला ब्रेन होता है, वो बहुत ही अलग होता है। अभी आपको धीरे धीरे अब समझ में आएगा। बात करने का तरीका बदल गया मेरा कि नहीं बदल गया? बिल्कुल डायलेक्ट चेंज है कि नहीं है? कोई टॉपिक नहीं। मैंने इसलिए क्या कहा था, खाली आंसर राइटिंग के ब्रेन के साथ आइएगा कि हम आंसर राइटिंग करने हैं, हमें कोई टॉपिक कुछ नहीं आता। इज इट डन? ना आज आपको आता है ना हमें आता है। इज इट डन? तो यहाँ पर राइटिंग ओनली अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट इज लूजिंग सब्जेक्टिविटी, क्योंकि पूछा ही नहीं गया है। पूछा क्या गया? वुमेन एम्पावरमेंट इज अ की टू कंट्रोल। तो आप इंटीग्रेटेड स्टेटमेंट है, इंटीग्रेटेड आंसर दीजिए। अब आप सोशल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट और जो है ऐसा कैसा एम्पावरमेंट दे सकते हैं, ये बात मुझे मालूम है।
मगर नंबर मिलेगा 0। नंबर कितना मिलेगा? मगर अगर आप ये कहेंगे कि व्हेन वी एजुकेट अ गर्ल, क्या बोला? व्हेन वी एजुकेट अ गर्ल, सो इफ द गर्ल इज एजुकेटेड and if the girl completes her PG post graduation at the age of 24 and if she further goes for career building and higher doctorate programs, then there will be the late marriages. So just upbringing the women, upbringing the girls in the society through education, there will be a late marriages, and the late marriages will definitely bring out the girl from her childbearing age, fertile age. Got the point? Definitely the number of children per woman will automatically get, because it is the woman who gave birth, not the men. सिंपल सी बात है, हाँ है ना? कैसा लगा? तो आपने एजुकेशन को ले जाके कहाँ ब्रिंग कर दिया? नाउ इफ यू से कि इफ द वुमन इज इकोनॉमिकली एम्पावर्ड, so her role in decision making process in the family planning comes out in a stronger form. Yes or no? So it is not only the will of the, it is not only the consensus of the men who can go for family planning. It is now the system where the husband and wife all together participate in the family planning process. कैसा लगा? Yes or no? So when you are linking the woman empowerment with the controlling population, then you are writing a right answer. और ऐसे women empowerment कितना लिखते रहो? Yes or no? And इसी में स्टूडेंट 2 क्या कर रहा है? एक स्टूडेंट 3 है, उसने ये तो एक्सप्लेन किया ही किया, होल्डिंग द सब्जेक्टिविटी while holding subjectivity if he or she supports view through reports, through report datas, then objectivity is also created. Then objectivity is also created. किसको आंसर, किस स्टूडेंट को ज्यादा अच्छा नंबर मिलेगा? सबसे मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट, ये एक्यूरेट और ये, got the point? Now you have to decide whether you want to become a student 1, 2 or वो सब्जेक्टिविटी को होल्ड करते हुए अपनी इस बात को, जैसे हमने कहा कि जो है इफ द वुमन इज एजुकेटेड, द गर्ल इज एजुकेटेड, देन द लेट मैरिजेस एंड ऑल, एंड उसको आपने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट से क्या कर दिया? सब्सटेंशिएट कर दिया. तो यू आर होल्डिंग द सब्जेक्टिविटी एज वेल एज ऑब्जेक्टिविटी. तो कौन सा आंसर ज्यादा बेटर रहेगा? विच आंसर विल बी मोर बेटर? जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? कैसा लग रहा है? फीलिंग गुड? तो यहां पर अब नेक्स्ट है रूल नंबर 4. सबने बता लिया? ये बता लिया? यस और नो? नाउ रूल नंबर 4, if we talk about रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 का क्या मतलब है? रिप्रेजेंट योर आंसर in an integrated form. Represent your answer in an integrated form. That is, answer flow should be smooth,
एंड कंटिन्यूअस, शुड बी स्मूथ एंड कंटिन्यूअस। ये नहीं कि उसमें बहुत ही ब्रेक लग रहा है, अभी कुछ सोचा लिख दिया, फिर कुछ सोचा लिख दिया, नहीं। समझ में आया? सो डू प्रॉपर ड्राफ्टिंग, डू प्रॉपर ड्राफ्टिंग, पहले से ही आप सीक्वेंस को ड्राफ्ट कर लें। डू प्रॉपर ड्राफ्टिंग, है ना, क्रिएटिंग सीक्वेंस, है ना, क्रिएटिंग हाँ या ना, यस और नो। नेक्स्ट वी हैव रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 की अगर बात करें, पहले तो क्या हो गया, लॉजिकल हो गया, स्मूथ फंक्शनिंग हो गया, कंसिस्टेंट फ्लो हो गया, कंटिन्यूअस फ्लो हो गया, यस और नो। व्हाट कैन बी द एल्स हियर? सोचो, व्हाट शुड बी द एल्स? और क्या हो सकता है? आंसर शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट। आप लोग इनकरेक्ट ग्रामर का यूज नहीं कर सकते। रूल नंबर 6, आंसर शुड बी concise एंड प्रिसाइज। इसका क्या मतलब है? कम वर्ड्स ज्यादा मीनिंग कन्वे करें, यानी कि फ्यूअर वर्ड्स शुड कन्वे मोर मीनिंग। क्योंकि आप क्या बनने जा रहे हैं? यू आर गोइंग टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट्स। गॉट द पॉइंट? यस और नो? कोई लीडर थोड़ी ना बनने जा रहे हैं लोकल की जो है ज्यादा बोले और कम समझ में आए, क्योंकि समझ में आने का तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ या ना? यस और नो? तो यहां पर ट्राई टू डिफाइन योर रोल। यू आर गोइंग टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट्स। यहां पर फ्यूअर वर्ड्स शुड कन्वे मोर मीनिंग। आप कम बोले और मीनिंग ज्यादा कन्वे हो। आप इसमें जितने भी वेल डिफाइंड टॉप लेयर ब्यूरोक्रेट्स हैं, इवन टॉप लेयर पॉलिटिशियंस भी हैं। मैं लोकल लीडर्स की बात नहीं करता, मगर मैं टॉप लेयर पॉलिटिशियंस की बात करता हूं। कभी उनके भी स्टेटमेंट सुनिए। दे स्पीक मच लेस, गॉट द पॉइंट, और वो उतने में इंपैक्ट डाल के चले जाते हैं। यानी कि क्रिएटिंग इंपैक्ट इन योर आंसर, क्रिएटिंग impact in your answer. Yes or no? And these are the certain rules that you have to follow. बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्लियर हो गई बात? हाँ या ना? कैसा लग रहा है? हाउ इज द जोश? ये हाई है तुम लोग का जोश, तो तुम लोगों ने ऐसे कर रखा है जैसे वो भी सोचता होगा कहां फंस गया जाके, है। तो दीज आर द सर्टेन रूल्स फॉर राइटिंग द आंसर्स। मेरे हिसाब से इतना ही है। क्लियर हो गई बात? इसके अलावा आपका जो है लैंग्वेज जो अपने हिसाब से आप जो कमांड रखेंगे वो होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शैल वी मूव अहेड? तो अब आपने इन रूल्स को देख लीजिए। लुक एट दीज रूल्स फर्स्ट। और अब हम क्वेश्चन आंसर करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर नाउ। हो गया? हाँ है ना? डन? तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें। शैल वी स्टार्ट नाउ? तो यहां पर हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। आई एम गिविंग यू सर्टेन क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा,
तो यहां पर जो टॉपिक है इस समय, या टॉपिक हम इस समय क्लाइमेट चेंज ही लिए ले रहे हैं, ठीक है। आई एम टेकिंग अ टॉपिक क्लाइमेट चेंज। आपके में कितने कितने वर्ड्स में आंसर आता है, मैक्सिमम वर्ड्स? 1। सेम है यूपीएससी वाला है कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 150 वर्ड्स है, ये सेम है। अगर 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 200 वर्ड्स है, ये सेम है। और अगर 15 मार्क्स, नहीं तीनों कैटेगरी के आते हैं, 15 मार्क्स का है तो 250 वर्ड्स है, ये सेम है, हाँ है ना। तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देयर इज नो इशू इन दैट। क्लियर हो गई बात? फिर तो हम फटाफट अभी करा देते हैं। तो टॉपिक हमने ले लिया क्लाइमेट चेंज। नाउ योर क्वेश्चन इज, सिंस 1800s human activities have been the main driver of climate change. Explain. कैसा लगा? आए ना? Have been the main driver of climate change. 10 marks, 150 words, समझ में आया? और जो भी क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, that should get completed in, is it done? शीट लेके आए हो ना? हाँ तो मैं ये भी बता दूं, 1.5 पेज, इज इट डन? सब कुछ बिल्कुल दिमाग में सेट करके चलिए। क्या बोला? 10 मार्क्स, 150 वर्ड्स, 7 मिनट्स, 1.5 पेज। इतना पेज तो कवर होना ही चाहिए, इससे कम तो कभी भी कवर होगा तो इंटरटेन नहीं होगा, इधर वो अपने आप जाके वहां बैठ जाएगा। दूसरा है क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज is reality today. Climate change is reality today. Examine. 10 marks, ये 10 में अच्छा नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन जरा 15 में खींचो। 15 मार्क्स, 250 वर्ड्स, 10 मिनट्स, 2.5 pages. Got the point? Yes or no? कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? Climate change is reality today. Examine. एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम, ठीक है। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह तो कुछ पढ़ा नहीं है, ये तो हम खींच लेते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। सिंस 1800 sea level rise has occurred more than 1 meter, या ठीक है, मान लो हैज अकर्ड बाय मोर देन 12 इंचेस। समझ में आया? कुछ ही मान लो, है ना, वो हम देखेंगे बाद में। हैज अकर्ड मोर देन 12 इंचेस, इज इट डन? तो यहां पर in the light of this statement, discuss its possible
impacts in the Indian Oceanic region. In the Indian Oceanic, is it done? Yes or no? 10 marks. $150 words, and then we have 7 minutes and 1.5 pages and 1.5 पेजेस. हाँ या ना? कैसा लग रहा है? क्वेश्चन सेम्स गुड? हाँ या ना? कितने लोगों का दिमाग उड़ गया? हाथ रेस करें. हाँ, उड़ना भी चाहिए, यही तो चाहते हैं हम. What I want to show you the difference between the classroom program and the answer writing session. Is it done? The answer writing session is a different cakewalk. Is a different cakewalk. जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है. And till the time you are not able to write answers, you are nothing. Your complete preparation is zero. Your complete preparation is, सुनने में खराब लगता है मगर है यही. Is it done? And I am very straightforward person. Is it done? क्या बोला? Very straightforward. क्योंकि आपको पता होना चाहिए. तो यहां पर क्वेश्चन करना शुरू करें. तो हम 3 क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे. आज क्योंकि पहला दिन है तो हम बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे, लेकिन जो है कल से हम 5 क्वेश्चन कराएंगे और 5 क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे. इज इट डन? तो 10 क्वेश्चन का हमारा पूल बनेगा और 10 दिन में 100 क्वेश्चन खत्म. इज इट डन? तो क्वेश्चन क्या है हमारा, जरा पीछे कौन सा पहला क्वेश्चन क्या, जरा बोलना. तो सिंस 1800s ह्यूमन activities have been the main driver of climate change. Have been the main driver of climate change. Explain. इसमें क्वेश्चन का डिमांड क्या है? तो पहले ड्राफ्टिंग करेंगे. क्या करेंगे? इज इट डन? सो वी आर डूइंग ड्राफ्टिंग हियर. क्या करना है? व्हाट इज द सब्जेक्टिविटी हियर? हाँ, तो ह्यूमन एक्टिविटीज. तो आपको जो अपना ड्राफ्टिंग करना है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज और क्लाइमेट चेंज में क्या बैठाना है? लिंकेजेस बैठाने. क्या बैठाने? हाँ है ना? कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 10 मार्क्स का. क्लियर हो गई बात? ये तो हो गया आपका क्या, सब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी कैसे क्रिएट करोगे? जब हम कुछ क्या देंगे, स्टेटमेंट्स. क्या देंगे? स्टेटमेंट्स. हाँ है ना? कैसा लग रहा है? अब मुझे आपके एपीएससी का नहीं पता, असम पब्लिक सर्विस कमीशन का, मगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जब आईएएस होता है तो उसमें अगर 10 मार्क्स का पेपर है तो उसमें आपको टॉपर्स को 5 मार्क्स मिलता है, 4 to 4.5. समझ में आया? मगर जितने भी स्टेट हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूं कि उसमें भी 60% मार्क्स मिलता है टॉपर को. कितना परसेंट मार्क्स मिलता है? 60%. समझ में आया? तो जो क्वेश्चंस का जो आंसर्स का रेंज रहता है, जैसे मान लीजिए कि आंसर का जो मार्क्स होता है, तो अगर हम आंसर के मार्क्स की बात करें तो मान लो 10 मार्क्स क्वेश्चन है. क्लियर हो गई बात? तो एक रेंज है 4, एक रेंज है 4.5, एक रेंज है 5. समझ में आया? अगर आप एपीएससी में हैं, असम पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें नॉट सेलेक्टेड, नो सिलेक्शन, ठीक है, चांसेस
ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, और अगर आपका ये मार्क्स 5.5 से ग्रेटर है, यानी कि अगर ये 6 मार्क्स है, 100% सिलेक्शन। क्या है, जितने भी स्टेट पीसीएस पढ़ाए हैं उसमें ये गारंटीड है मेरा कि इफ यू आर स्कोरिंग 60% मार्क्स, ये मैं बात बता के चलता हूँ, अगर प्रीलिम्स है तो 70% मार्क्स प्रीलिम्स में, और अगर ये जो है मेंस है तो 60% मार्क्स मेंस में है ना, फॉर द जो है स्टेट पीसीएस। ठीक है, तो आपके असम में भी आप लोग अपना रिजल्ट देखिएगा तो उसी हिसाब से होगा क्राइटेरिया। और अगर यही चीज़ यूपीएससी होती तो मैं बोल देता हूँ कि इट इज़ 50 to 55% मार्क्स। क्लियर हो गई बात? तो हमने शुरुआत के ये दो में क्या बोल दिया, नॉट सेलेक्टेड, नो सिलेक्शन, चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड एंड 100% सिलेक्शन। तो आपको अपना मार्क्स क्या रखना है, ठीक है। और ये टॉपर है, ये क्या है, यही टॉपर बनेगा। कौन बनेगा? टॉपर बनेगा। यानी कि अब यहां से ये बात ये समझ में आ गई कि जब मार्क्स 6 नंबर से ज्यादा मिलना ही नहीं है तो हमें ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लिखे पढ़े लिखे पढ़े लिखे पढ़े। कंस्टेंट देखिए 1.5 पेज कंस्टेंट है, 7 मिनट्स में आंसर लिखना कंस्टेंट है। इफ यू गो फॉर द गूगल and if you just write this question in your Google and try to find out the answer, chat GPT and all, definitely there might be a good answers, मगर उस chat GPT को बोलो कि write your answer in 7 minutes is it done? Yeah, those content writers who are writing the answer and uploading the answer on the Google platform, उनसे बोलो write your answer in 7 minutes, they won't be able to write answer। समझ में आया? उनका आंसर आपसे भी ज्यादा बर्बाद होगा। क्यों? क्योंकि दे आर बीइंग पेड, दे हैव रिटन देयर आंसर इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स एंड दे हैव टेकन मोर देन 24 आवर्स टाइम। इतना टाइम अगर आपको मिलेगा तो एक आंसर के लिए तो आपका सिलेक्शन होगा क्या? क्लियर हो गई बात? तो यहां पर सबसे पहला रूल है कि इट इज नॉट द कॉम्पिटिशन बिटवीन इट इज नॉट द कॉम्पिटिशन बिटवीन मोहम्मद रफ़ी एंड किशोर कुमार। यू नो मोहम्मद रफ़ी? मोहम्मद रफ़ी जानते हो? किशोर कुमार जानते हो? हैं, सिंगर है ना? तो दिस इज तो व्हाइल यू आर राइटिंग योर मेंस आंसर, इट इज नॉट द कॉम्पिटिशन बिटवीन मोहम्मद रफ़ी एंड किशोर कुमार, इट इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन हनी सिंह एंड बादशाह। देखो हंसी आई कि नहीं आई? यानी कि कंपटीशन इस बात का नहीं है कौन अच्छा गा रहा है, कंपटीशन इस बात का है कौन कम खराब गा रहा है। सो व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स, व्हेन यू ऑल आर राइटिंग योर आंसर्स, तो यू ऑल आर आइदर हनी सिंह और बादशाह। तो तुम लोग में कंपटीशन इस बात का नहीं कौन बहुत अच्छा आंसर लिख रहा है। समझ में आया? तुम लोग में कंपटीशन इस बात का होगा कौन कम खराब आंसर लिख रहा है। जो कम खराब लिखेगा दैट विल बिकम समझ में आया? यस और नो? गेटिंग द पॉइंट्स? जब आप इस माइंडसेट के साथ आंसर लिखने उतरते हैं तो यू आर कंफर्टेबल, यू आर कंफर्टेबल, योर बॉडी शुड बी कंफर्टेबल, योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी कंफर्टेबल, योर माइंड शुड बी कंफर्टेबल। अभी समझ में आया? डर खत्म हो गया, फियर खत्म हो गया, क्योंकि आइदर यू आर हनी सिंह और बादशाह। गॉट द पॉइंट? यस और नो? सो आई एम गिविंग यू 7 minutes टाइम, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब यहाँ पे घड़ी की सुई चलेगी भैया, अपनी अपनी घड़ी देखो, 7 मिनट का टाइम सेट करो, भले ही खाली बैठे रहो मुझे चलेगा। इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम ही अलग से रखवाया। मैंने कहा होगा क्या कि कुछ बच्चा आंसर लिख के लाएगा, वो भी अप टू मार्क होगा नहीं, फिर मैं उसे कितना भी बताऊंगा ग्रूम करूंगा उसको उतना समझ में, मैं पूरा एक आंसर राइटिंग का सेशन का क्लास ही क्या कर दे रहा हूँ। इज इट डन? वो जो ग्रूमिंग होगी वो बहुत ही क्या होगी, ऑर्गेनाइज्ड होगी। क्या होगी? ऑर्गेनाइज्ड। So now start writing your answer. Your time starts now. 7 minutes. 4:25 पे आपका टाइम ओवर हो जाएगा. Your time starts now. Thank you. नहीं लिख पाए, हाँ ईमानदारी से, I just want an honest reply. Yes. अब समझ में आया what I told कि चैट जीपीटी से आंसर लिखना, गूगल से आंसर लिखना इज अ डिफरेंट थिंग, एंड उसी प्रेशर में आंसर लिखना इज अ डिफरेंट। मैंने कई लोगों को देखा, कई लोगों के आंसर्स जैसे सर्ज ऑफ टेम्परेचर राइज, दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। व्हाट वाज द क्वेश्चन? ह्यूमन एक्टिविटीज आर लिंक्ड टू क्लाइमेट चेंज।
हाँ ये ना, मुझे खुशी इस बात की हुई कि कई लोगों ने ऑब्जेक्टिविटी को क्रिएट करते हुए अपना आंसर लिखा कि IPCC का डेटा ये कह रहा है, या किसी ने लिखा UNCCD का रिपोर्ट ये कह रहा है ना, किसी ने कहा यानी कि ये तो आप समझ गए कि ऑब्जेक्टिविटी क्रिएट करना है। बट देखिए कितने लोग आंसर्स नहीं लिख पाए होंगे, दिमागी नहीं चल रहा होगा इतने प्रेशर में, यानी कि प्रेशर मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट? प्रेशर मैनेजमेंट। अब देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही जो आंसर लिखाया है उसमें यही लिखाया था, हाउ द ह्यूमन एक्टिविटीज आर लिंक्ड टू क्लाइमेट चेंज। हाँ या ना? हाउ द ह्यूमन एक्टिविटीज आर लिंक्ड टू क्लाइमेट चेंज, यस और नो? तो अभी हम यहां पर अब हम आंसर अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हाउ वी विल राइट द आंसर? नाउ लुक एट दिस। चलिए शुरू करा जाए। हाँ या ना? ऑल्दो, एक सेकेंड, climate change refers to a long-term shift in temperature and weather patterns although climate change can be natural, but post-industrial revolution man-made activities have been the main driver of climate change। कैसा लगा? Yes or no? Have been the main driver of climate change। कैसा लग रहा है? Yes or no? क्या लिखा मैंने? Climate change refers to a long-term shift in temperature and weather patterns. Although climate change can be natural, but post-industrial revolution man-made activities. Got the point? Yes or no? But since या जो भी whatever है ना, but since post-industrial revolution man-made activities have been the main driver of climate change. यहाँ since लगेगा, क्या लगेगा? मैं कोई आंसर लिख के तो लाया नहीं, is it done? तो मैं भी आप ही के हिसाब से चल रहा हूँ। ये स्टार्ट कैसा लग रहा है? How this start seems to you? अपीलिंग? हाँ है ना? और ऐसा नहीं है कि ये बात सबके पास नहीं थी, हाँ है ना? इसमें से हमने क्या किया, उन पैराग्राफ में से नेचुरल वाला क्या कर दिया है, नेचुरल वाला क्या कर दिया है, हाँ या ना? यस और नो? अब यहां पर अब देखिए, यहां पर लिखेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज एंड क्लाइमेट चेंज, है ना? तो पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन burning of fossil fuels लिखा, and changes in the land use are important causes of climate change. Are important causes of climate change. एग्जामिनर ने तुरंत ही इसको क्या कर लिया होगा, एग्जामिनर तुरंत ही इसको क्या कर लेगा, दिमाग में पिक करेगा कि नहीं करेगा?
हमने यहाँ डिफॉरेस्टेशन शब्द का यूज क्या कर दिया, अभी हटा दिया है। टेक्निकली हमने क्या यूज कर लिया, चेंजेस इन द लैंड यूज, हाँ या ना। आगे देखते हैं, बर्निंग ऑफ fossil fuels like coal, petroleum, gas has resulted increased emission of greenhouse gases, emission of greenhouse gases like CO2, methane in the atmosphere, है ना, etc, है ना, in the atmosphere, which has trapped more heat, for last 200 plus years than many thousand years, हाँ है ना, it would have trapped, yes or no, हाँ है ना, कैसा लग रहा है, then it would have trapped, बनाया, yes or no, then it would have trapped, कैसा लग रहा है, as a result, या for example, CO2 concentration in the atmosphere has increased from 280 ppm to more than 425 ppm today, above pre-industrial level, है 280 from 280 ppm to more than 425 ppm above pre-industrial level। तो ये कितने का राइज है, कितने का राइज है, जल्दी बताइए, हैं, a rise of, देख लेना, a rise of कितना हो जाएगा, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, हटाओ, ठीक है, राइट डाउन, मीथेन कंसेंट्रेशन in the atmosphere has increased from approx 700 parts per billion to more than 1900 parts per billion, है ना, yes or no, parts per billion today above pre-industrial level, above, इसने क्या क्रिएट करा, इसने आपके आंसर में क्या क्रिएट करा, ऑब्जेक्टिविटी। कैसा लग रहा है, मजा आ गया। अब तुम एग्जामिनर हो, तुम सोचो कि ये आंसर देख के कैसा लग रहा है, और एक पेज भर गया होगा, हवा भी नहीं लगी होगी, हाँ है ना,
क्लियर हो गई बात? और यहां जहां पे हमने पीछे अपना आंसर लिखा है ट्रैपिंग वाला, मेरे पास जगह नहीं थी, नहीं तो मैं आपको बताता कि यहां पर मैं आगे दिखाई दे रहा हूं कि आपने उठाया यहां पर एक पृथ्वी बनाई, क्या बनाई, फिर उसके बाद यहां पर एक ग्रीन हाउस गैस दिखा दिया, ठीक है ना, क्या दिखा दिया, ठीक है। अभी मैं टाइम पे नहीं जा रहा हूं, है ना, अभी मैं कंटेंट पे जा रहा हूं। क्लियर हो गई बात? ये हो गया टैपिंग। ये क्या है? यूवी रेस, शॉर्ट यूवी रेस, और यहां पर ये क्या हो जाएगा? लॉन्ग इंफ्रारेड रेस। कैसा लग गया? एंड दिस इज कॉल्ड ट्रैपिंग हीट, ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैपिंग। कैसा लग रहा है? बढ़िया, डायग्राम सेट। अब यहां पर क्या लिखेंगे? इंक्रीज्ड बर्निंग of fossil fuels were from different sectors, हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इज इट डन? आपको लग रहा होगा बार बार रिपीट हो रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है ना। तो या फिर आप इंक्रीज यूसेज ऑफ फॉसिल फ्यूल कर लीजिए, है ना। अब यहाँ पर हम तो भी आपको केवल ट्रांसफर कर रहे हैं कि आप कैसे यहाँ पर सोचेंगे। आई एम गिविंग यू पॉइंटर्स। जब आप इसको और क्रक्स में लिखेंगे तो ये और क्या हो जाएगा, समझ में आया? तो इंक्रीज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स वर फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स लाइक पावर सेक्टर, फिर देन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, industry, got the point, buildings, etc. Got the point? On the other hand, changes in land use like increased deforestation, got the point, has also made contributions in increased CO2 in the atmosphere, increased CO2 in the atmosphere. Got the point? Clearing the forest has contributed to climate change by two ways. एक तो जो वो एटमॉस्फेरिक CO2 एब्जॉर्ब कर सकता था वो नहीं किया, है ना, और जो उसका ऑलरेडी स्टोर्ड कार्बन था वो भी कहां रिलीज हो गया। समझ में आया? अब यहां पे कंक्लूजन पे लेके जाएंगे। कहां पे लेके जाएंगे? तो आगे चलेंगे। क्लियरिंग द फॉरेस्ट हैज contributed to climate change by two ways. by कितने ways? Number one, stored CO2 in plants is released into atmosphere, and number two, absorption rate
absorption rate of atmospheric CO2 was decreased. हाँ है ना? Yes or no? Aforesaid human activities अब ये कंक्लूजन पे जा रहे हैं हम. कहां जा रहे हैं? Aforesaid human activities has resulted a sharp rise of greenhouse gas emissions in the atmosphere. Got the point? For example, 37.8 gigaton CO2 equivalent in 1990 to 57.1 gigaton CO2 equivalent in 2023. Got the point? Increased levels of greenhouse gas लिखा is responsible for a rise of 1.2 degrees Celsius temperature above pre-industrial levels. Got the point? Yes or no? Which has affected all corners on the earth and has impacted all spheres of life. खत्म. इधर उधर भागा क्या मैं? कहीं भी इधर उधर भागा? जल्दी बताओ. 1.5 से 2 पेज के बीच में आंसर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? यस और नो? कैसा लग रहा है? हैं? थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया तो उसको शॉर्ट करोगे. देखो यहां पर कोई भी ऐसा नहीं चल रहा कि हम लोग बहुत हार्ड एंड फास्ट चल रहे हैं. We are starting the answer writing session. This is the first phase. This is the foundational base of your answer writing. Foundational foundational stage of your answer writing. Got the point? एक तरीका तो ये है कि मैं अपना आराम से बैठूं और आंसर लिख दूं और आप लोग को हैंड आउट दे दूं, बात खत्म, जो बाकी टीचर्स करते हैं. क्लियर हो गई बात? ना हम आपसे मिले ना आप हमसे मिले. हाँ या ना? तो बीइंग टू क्रिटिकल आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, इस बात को याद रखिएगा. तो हैव फ्लेक्सिबिलिटी फर्स्ट. अभी आप अपना आंसर देखिए जो कुछ नहीं लिख पाए थे, और आप ये आंसर देखिए. ये वही आंसर है जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सेट ऑफ नॉलेज हमने आपको इनबिल्ट करी है. हाँ या ना? कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखा है, मगर आंसर लिखा है उसी में से. क्योंकि सबसे पहला कंस्ट्रेंट ये है कि आपके पास, आप एक बार एग्जामिनेशन हॉल में चले गए तो अब आपके पास जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसी में आप अपना आंसर लिख. हाँ या ना? यस और नो? दूसरी बात, बहुत कम लिखना होता है. हम आपको अभी क्योंकि एज अ टीचर लिखा रहे हैं, अभी हम उसी कॉपी में लिखेंगे तो हम इसे और शॉर्ट कर चुके होंगे. क्लियर हो गई बात? यस और नो? कैसा लगा? परफेक्ट. अब आप उसमें कीवर्ड्स ढूंढिए. सब्जेक्टिविटी थी कि ह्यूमन एक्टिविटीज का लिंकेज है किससे? क्लाइमेट चेंज से. तो सब्जेक्टिविटी में ह्यूमन एक्टिविटी ही लेके चलाऊं कि नहीं चलाऊं? और ऑब्जेक्टिविटी कहां कहां क्रिएट करी है? पहला ऑब्जेक्टिविटी मैंने कहां क्रिएट किया है? ये देखिए, ऑब्जेक्टिविटी कहां कहां क्रिएट किया है. पहली बात तो क्लाइमेट चेंज रिफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स ऑल्दो क्लाइमेट चेंज कैन बी नेचुरल. मैंने ये बताते ही एग्जामिनर को ये बता दिया है कि मुझे पता है कि क्लाइमेट चेंज नेचुरल हो सकता है. यहीं पर वो हमको आधा नंबर दे देगा, क्योंकि हमने यहां पर क्या लिखा है? पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. तो हमने बता दिया है कि कब कैसे हुआ ये हमको पता है.
दूसरा है ह्यूमन एक्टिविटीज एंड क्लाइमेट चेंज। हमने यहाँ पर कितने कितने दिए हैं, 2 दिए हैं, तो यहाँ पर आधा नंबर हमने कैश कर लिया, आधा आधा 1 नंबर। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, गैस, हमें फॉसिल फ्यूल के बारे में बता दिया, यस और नो। हैज रिजल्टेड इंक्रीज एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, हमने यहाँ ग्रीन हाउस गैस के बारे में बता दिया, यस और नो। ये हमको, और फिर ट्रैपिंग मोर हीट, उसका रिजल्ट बता दिया। कितना नंबर दे देगा, 1 नंबर, 1 और 1 2 नंबर, हाँ है ना, 1 और 1 कितना हो गया, 2 नंबर। बाकी कहां गया, क्या हुआ, कहीं चला गया क्या, हाँ ये रहा, इज इट डन। अब यहां ऑब्जेक्टिविटी में हमने 2 ऑब्जेक्टिविटी क्रिएट करी है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन और मीथेन कंसंट्रेशन। हमें जो है इसका क्या मिल जाएगा, जल्दी बताइए, कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस और नो। तो यहां पर क्या हो गया, 3 नंबर। 3 नंबर के बाद इंक्रीज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, हमने यहां डिफरेंट सेक्टर्स को बताया है, तो यहां पर हमको ये 1 नंबर, या ये मान लो आधा नंबर, और यहां पर फिर ऑन द अदर हैंड चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न्स, हमने इसको लिंक करना शुरू किया तो 1 नंबर हमारा उसका मिल जाएगा, हाँ है ना। फिर यहां डायग्राम हमने प्लेस किया, कितना नंबर हो गया अभी तक, कितना नंबर मिला, आ गए कि नहीं आ गए। इस एक इस नंबर को बटोरने के लिए कहां हमें कीवर्ड सेट करने पड़े, यस नो। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहां पर हमने क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट को 2 तरीके से बताया है, इंपैक्ट कर रहा है, फिर से आधा नंबर खींचा हमने, और कंक्लूजन में भी हमने टेम्परेचर को यहां पे क्या कर दिया है, तो फिर हमने यहां पर, और इधर 37.8 गीगाटन, फिर से हमने ये वाला डेटा रखा, तो हमें कम से कम आधा नंबर यहां मिला। नंबर देख लो कितने हो गए, हाँ ये ना, यानी कि 6 नंबर खींचना इतना आसान है। इज इट दैट मच इजी टू जो है गेन 6 मार्क्स। हर एक समय दिमाग में क्या चल रहा था, कीवर्ड्स, सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, हाँ या ना, यस और नो। और अभी कितना नंबर मिला, इतनी चीज क्या आपके क्वेश्चंस में है, देखिए जल्दी से, इतनी चीज क्या आपके आंसर में है क्या। और मैं कोई आंसर लिख के तो लाया नहीं हूं कि उससे देख देख के पढ़ा रहा हूं, मैं भी चुपचाप सो के उठा हूं, चला आया हूं, चुपचाप क्वेश्चन अपने आप बनाए, अपने आप बनाना क्या कर दिया। अभी मैं एक डेटा देख रहा था, वो 9 इंच वाला 9 इंची है, बिल्कुल सही डेटा प्लेस किए हैं, इज इट डन। तो ये इसे कहते हैं क्या, प्रिपरेशन। कैसा लगा आपको, समझ में आ रहा है कि हर समय हम कैसे सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी को लेकर चलेंगे, गॉट द पॉइंट। रही बात वो इंक्रीज यूज, जब आप प्योरली आंसर लिख रहे होते तो उस समय फटाफट आप क्या करते जाते, उसको बैठाते जाते। अभी तो हम बार बार आपको लिखा के फिर बता रहे हैं, तो हमारा लिंक क्या हो रहा है, टूट रहा है, इज इट डन। शुरू करा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्लाइमेट चेंज इज रियलिटी, हाँ है ना। क्या करना है, एग्जामिन, है ना, बहुत अच्छी बात, फिर तो एग्जामिन है, तो अच्छा वो एक्सप्लेन नहीं है, एग्जामिन कितने मार्क्स में है, तो इट इज इन 15 मार्क्स, हाउ मेनी वर्ड्स and 10 minutes and 2.5 पेजेस। 11 मिनट्स भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब आप इसे 10 मिनट्स क्या, आप इसे 12 मिनट्स तक ले जा सकते हैं। हाउ मेनी मिनट्स, आप इसे 12 मिनट्स तक ले जा सकते हैं, मगर वो हम केवल उसके लिए रखते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट, मैं आपको कैलकुलेशन सिखा देता हूं। देखो कैसे, अगर मान लीजिए
10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 और 15 दोनों ही है ना, बस 12.5 मार्क्स का तो नहीं है। तो या तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा या तो यहां 150 वर्ड्स होंगे और यहां ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन, सॉरी 10 मार्क्स कह रहे हैं, यहां पर मान लीजिए आपने 7 मिनट्स लिया है, कितना लिया है, और यहां पर मान लीजिए 12 मिनट्स लिया है, हाँ है ना। तो अब यहां पर अगर हमने पहले की तरह यहां पर 10 मिनट लिया होता, इज इट डन। तो मान लो अगर 10 क्वेश्चन इसके बनते हैं, कितने क्वेश्चन, तो ये कितने मिनट का पार्ट हो गया। और मान लो अगर 10 क्वेश्चन इसके बनते हैं तो कितने मिनट का पार्ट हो गया, टोटल कितने मिनट्स का पेपर है, हाँ है ना। यानी कि एक्यूरेसी है कि नहीं है। मैंने कहा है कि इसको बहुत ज्यादा आप बढ़ा के कितना कर सकते हैं, तो हम बहुत ज्यादा आप इसको बढ़ा के कितना कर सकते हैं, 11 मिनट्स। मगर ये 11 मिनट्स आप एग्जामिनेशन हॉल में करिएगा। कहां करिएगा, जब आप 11 करेंगे तो यही चीज अगर 11 मिनट्स पे हम देखें तो यहां कितना हो जाएगा, 110 और 70, हाँ है ना। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हाँ है ना। तो दिस इज हाउ द एक्यूरेसी इन द टाइम इज मेंटेन्ड। शैल वी स्टार्ट नाउ। तो यहां पर अभी टाइम का मैनेजमेंट समझ में आया कि नहीं आया। सो व्हाट इज द ड्राफ्टिंग हियर। तो 10 मिनट्स हमने दे दिया है ऑफिशियली, अनऑफिशियली आप 11 मिनट तक ले लीजिएगा। नाउ व्हाट इज द ड्राफ्टिंग। यहां पर आपको क्या करना है आंसर में, कैसे कैसे एहसास कराएंगे कि क्लाइमेट चेंज रियलिटी बन गया है। तो क्लाइमेट चेंज कोई बताएगा, रीसेंट डेटास नहीं, और है कॉम्प्रिहेंड कैसे, अच्छा। और सबसे पहला है कि अगर if climate change is reality, if climate change is reality, है ना, then there must be impacts of it, है ना। यही है क्वेश्चन। then there must be, ये सुनो कैसा लग रहा है। और दूसरा है कि कंपैरिजन ऑफ क्लाइमेट किसके किसके बीच में, प्री 1800s, और आंसर यहां से स्टार्ट कर लीजिए। ये सुनो, हाँ है ना। तो जब आप एक कंपैरिजन ऑफ क्लाइमेट देंगे, व्हेन यू विल बी गिविंग द कंपैरिजन ऑफ द क्लाइमेट प्री 1800s एंड द पोस्ट 1800s, तो आप कम से कम 1 से 2 नंबर यहां तक ले जाएंगे। अब 15 मार्क्स का जो 60% है, यहां पर जो मार्क्स का क्राइटेरिया होगा कैसे होगा, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स और 9 मार्क्स। 7 मार्क्स नो सिलेक्शन, ये सुनो, है ना। 8 मार्क्स चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड, और 9 मार्क्स 100%। और ये किसका मार्क्स होगा, अभी इस फ्रेम में अपना आंसर लिखना है। यानी कि तुम कितना भी लिख लोगे, 9 मार्क्स से ज्यादा आंसर नहीं जाना है।
अब समझ में आ रहा है? आर यू रेडी टू राइट द आंसर? आर यू रेडी? हाँ है ना? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए शुरू करिए। क्या हुआ? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पुट योर पेन्स डाउन। टाइम अप। लिख पाए? नहीं हो रहा ना? ये रियल एग्जाम है, समझ में आया? दिस इज अ रियल एग्जाम जिसको अब आप फील कर रहे हैं। अभी सुबह कैसा लग रहा था? सुबह सब कुछ अच्छा लग रहा था। अभी कैसा लग रहा है? जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे, छान से जो टूटे कोई सपना, है ना? जग सूना सूना लागे, हाँ या ना? क्यों? जब भी टाइम का कंस्ट्रेंट होगा, किसका कंस्ट्रेंट होगा? टाइम का कंस्ट्रेंट होगा, प्रेशर आएगा। क्या आएगा? अभी पेज का कंस्ट्रेंट है, टाइम का कंस्ट्रेंट है, मार्क्स का कंस्ट्रेंट है। आपको क्या करना है? इन सब में अपने आप को क्या करना है? एडजस्ट करना है। चलिए अब हम आंसर जरा ड्राफ्ट कराते हैं आपको, है ना? लेट मी ड्राफ्ट द आंसर। क्या लिखा है? क्लाइमेट चेंज इज रियलिटी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज इज रियलिटी, तो आप अपना आंसर कैसे शुरू करेंगे? बात समझिएगा। एज पर IPCC assessments, it is now a established fact, मतलब ये मेरा अपना आंसर है, आप इससे और बेहतर लिख सकते हैं। इज इट डन? यस और नो? इट इज नाउ a established fact, it is now a established fact that the climate which has changed yes हाँ बिल्कुल करना चाहिए। तो खाली वो करके दे दे, चलिए वो कर देते खाली, हमें कोई दिक्कत नहीं बॉस, हमें तो और अच्छा रहेगा, बल्कि हम उतना ही कराते ही हैं। इज इट डन? माइंड मैप बनाई दे रहा मैं, हाँ मैं माइंड मैप बनाई दे रहा हूँ, ठीक है ना? चलिए जैसे मान लीजिए कि क्लाइमेट चेंज इज रियलिटी। अगर मैं कहूं कि क्लाइमेट चेंज इज रियलिटी, तो सबसे पहले स्टार्टिंग आपको करनी है कोई एक रिपोर्ट्स फैक्ट वगैरह से। समझ में आया? और आपको ये समझाना है, जैसे मैं भी किसका लेता? IPCC का डेटा लेता, ये सुनो, और ये बोल देता कि जो लास्ट 100,000 ईयर्स में चेंज नहीं हुआ। क्या? जो लास्ट 100,000 ईयर्स में चेंज नहीं हुआ। 100,000 ईयर्स मतलब 1 10 100,000 10,000 लाख, है ना? तो जो लास्ट 100,000 ईयर्स में चेंज नहीं हुआ, वो केवल 200 प्लस ईयर्स में क्या हो गया है? जो टेम्परेचर के ट्रेंड है, इसमें जो टेम्परेचर का ट्रेंड है, इसमें जो टेम्परेचर का जो ट्रेंड है, वो हैज शोन डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, हैज शोन डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल। हाँ या ना? कैसे? जैसे मान लो कि ये 320 ppm CO2 है ना? कितने ppm CO2 है? और यहां पर मान लेते हैं कि ये आप कम से कम 20 या मान लो कोई 200,000 ईयर्स ले लिया, और यहां पर आपने ले लिया 1800, और यहां पर आपने ले लिया 2020। अब यहां पर अभी तक जितने भी ये थे एमिशंस, ये सब 320 से क्या थे? नीचे थे। और अब
320 के क्या है? कैसा लगा? समझ में आया कि नहीं आया? और इसको नीचे लेके आने की जरूरत नहीं है, इसको वहीं ऊपर अपवर्ड ट्रेंड में दिखाना है। कैसा लग रहा है? हाँ या ना? मजा आ गया कि नहीं आ गया? खाली इतना देखते ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसकी ग्रेप कंटेंट पर क्या है, तेज है। इज इट डन? जो मैंने 100,000 से नहीं हुआ वो सिर्फ यह क्या है। अब दूसरा है कि क्लाइमेट चेंज रियलिटी है, जैसे आर्कटिक एंड अंटार्कटिक आइस लॉस, है ना। इसमें एक डेटा हो सकता है कि जैसे ऑब्जेक्टिविटी क्या है, इन अंटार्कटिक 150 बिलियन टन ice is lost every year. Is lost every year. ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब ये सब आपको बटोरना पड़ेगा, यही तो मेंस मैकेनिक्स है कि आप क्या लेके जा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, या आप सिर्फ जा रहे हैं। इज इट डन? दूसरा है ओशनिक, या अभी ओशनिक नहीं लिखते हैं, अभी हम लिखते हैं सी लेवल राइज। हाँ है ना। और फिर सिंस 1800 से क्या कह दिया, राइज ऑफ हाउ मच, 9 इंचेस। फिर उसके बाद ओशनिक एसिडिफिकेशन, उसमें क्या लिख देंगे, पीएच 8.2 से कहां शिफ्ट हो गया, और एसिडिटी इंक्रीज कितने % से हो गया, बाय 30%। हाँ है ना। हर चीज के साथ देखो ऑब्जेक्टिविटी चल रही कि नहीं चल रही है, हाँ या ना, yes or no, objectivity is working or not. Then we have oceanic temperature rise, जिसमें आप क्या बोलेंगे, जो टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। क्लियर हो गई बात, यस और नो। इसका इंपैक्ट क्या है, मरीन हीट वेव, मरीन, उसके बाद बायोडायवर्सिटी लॉस, उसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोरल रीफ ब्लीचिंग, है ना, एक्सटिंक्शन रेट ऑफ स्पीशीज क्या हुआ है, बढ़ गया है। ये सारी चीजें यही तो प्रूफ कर रही है क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, क्लाइमेट चेंज इज अ। आप लोग को मैं देख रहा था, किसी ने तो वो लिख दिया कि हम लोग करंट टेक्नोलॉजी से ऐसे रिन्यूएबल में जाएंगे, ये कर देंगे। अरे पूछा ही नहीं है, लास्ट में 2 लाइन का कंक्लूजन दे दो, तो जबरदस्ती उसको लेके चले आए, हाँ है ना। फिर उसके बाद आप क्या देख सकते हैं, इंक्रीज्ड हैजार्डियस इवेंट्स, हाँ है ना। जैसे अरेबियन सी को लेके आइएगा, पहले अरेबियन सी में उतने साइक्लोन नहीं आते थे। अरेबियन सी में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो काउंट है वो क्या हो गया है, और वो याद है कि दूसरा एक हमने इसमें और जोड़ा था,
कि जो साइक्लोन की इंटेंसिटी है वो भी क्या हो गई है, वो कैटेगरी वाला बताया था, ये सुनो। उसके बाद यहां पर फ्लड इवेंट्स, फ्लड इवेंट्स हर जगह क्या हो गए हैं, बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, ये सुनो। उसके बाद यहां पर ड्रॉट इवेंट्स लगातार बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे। जब ड्रॉट इवेंट लेके आइएगा तो क्या जोड़ दीजिएगा, डेजर्टिफिकेशन को जोड़ दीजिएगा। 2/3 लैंड एरिया ऑफ वर्ल्ड किसके अंडर में है, डेजर्टिफिकेशन के अंडर में है। क्या ये क्लाइमेट चेंज की रियलिटी नहीं है, हाँ है ना। अगर आप अपना नंबर मार्क्स देना शुरू करेंगे, एक, ये सुनो, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 इवेंट दे दिए आपने, हाँ या ना। अभी कितना तो देना बाकी है, हाँ या ना, अभी कितना तो देना बाकी है। जैसे टेरेस्ट्रियल आप देखेंगे जो हीट वेव्स क्या हो रही हैं, और ऐसे में हीट रिलेटेड इलनेस क्या हो रही है। फिर उसके बाद और क्या हो सकता है, हीट वेव्स हो गया, हीट रिलेटेड इलनेस। उसके बाद जल्दी बताइए, हेल्थ रिस्क, चलिए वो तो खैर इंपैक्ट हो गया, हमें क्लाइमेट चेंज को रियलिटी बताना है। हीट वेव लेकिन जो है क्या है, रियलिटी है। हीट वेव इज अ, इसमें कनाडा का जिक्र करिएगा, किसका, कनाडा हीट वेव 800 इंस्टेंट डेथ थी यहां पर जस्ट 2 years बैक, यस 2 to 3 years बैक। समझ में आया, कैसा लग रहा है। फिर उसके बाद एवरी ईयर इज बिकमिंग हॉटेस्ट, हाँ या ना, यस और नो, कैसा लग रहा है। अरे लिखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, हाँ है ना। अब बताइए कितनों के पास पॉइंट्स, अब समझ में आ रहा है कि पॉइंट्स हमारे पास बहुत पॉइंट्स हैं। अभी भी हम लिखने चले तो अभी कम नहीं है हमारे पास। इज इट डन, और इतने में 2.5 पेज हो जाएगा, 2.5 क्या 3 हो जाएगा। अब आंसर नहीं लिख सकता मैं ठीक है, अब माइंड मैप हो गया, क्लियर हो गई बात। ये कैसा लग रहा है बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नाउ यू कैन राइट योर आंसर और नॉट। मगर उस आंसर को लिखे, उसका पॉइंट बिल्कुल वैलिड था कि सर आप अपना माइंड मैप रखिए, तो ये हमारा माइंड मैप है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द आंसर, अ टीचर शुड पुट द माइंड मैप्स, कि आपके माइंड में क्या है। तो अब टीचर का माइंड में देखो क्या था, टीचर के माइंड में हेडर्स थे और साथ में ऑब्जेक्टिविटीज थी, हाँ या ना, इतना। तो जब आप अपना आंसर लिख रहे हैं तो आपके पास ये सब नहीं है। कहने का मतलब है कि जस्ट स्टडिंग क्लाइमेट चेंज इन द क्लास एंड हैविंग अ अंडरस्टैंडिंग आपको कभी भी मार्क्स, अच्छे मार्क्स नहीं दिला पाएगी। कौन से मार्क्स। तो हमने ये जो क्लास लगाया है, ये स्पेशल सेशन आपके लिए रखवाया है कि मैंने साहब बोला, हमने कहा रियल मायनों में अगर बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें ये समझना होगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्लासरूम एंड द मेंस आंसर राइटिंग सेशन। गॉट द पॉइंट। और देखो कहीं रटने की जरूरत पड़ रही है क्या, कहीं कुछ रटने की जरूरत, आप लोग कॉपियां खोल के रट रहे हैं, बताइए, रटने की कोई जरूरत, जस्ट सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो जब भी अब आप पढ़े तो आप फैक्ट को बटोरना। जैसे 150 बिलियन टन आइस लॉस्ट एवरी ईयर, मैंने कब पढ़ा होगा, इस समय याद आ गया, समझ में आया। तो आपको हर एक चीज ऑब्जेक्टिविटी के साथ पढ़नी है। कैसा लगा ये आंसर, कितने लोग लिख पाएंगे, हाथ रेस करें। आज जाके घर पे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, हाँ या ना। अब व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन। has occurred more than
9 इंचेस, 9 इंचेस है ना, उसको 12 इंच को 9 इंच कर लो, है ना, यस नो, क्या कर लो, 9 इंच। कैसा लग रहा है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर क्वेश्चन नंबर 3 इज, सिंस, आगे बोलिए, 1800 sea level rise has occurred more than 9 inches. फिर क्या लिखा है? In the light of this statement, discuss its possible impacts over IOR, है ना? कितने मार्क्स में दिया है? 10 मार्क्स। कितने वर्ड्स, कितना टाइम, कितना पेज, हाँ है ना? मार्क्स कितना नंबर अगर लाए, मान लो 4.5, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, तो नो सिलेक्शन, चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड 100% सिलेक्शन, आए ना, ये सुनो। तो अब यहां पर ड्राफ्टिंग करिए इसकी, चलिए डू द ड्राफ्टिंग, गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम। चलिए अब हमने जैसे ड्राफ्टिंग किया है वैसे आप ड्राफ्टिंग करिए, देखिए आपके माइंड में क्या है। डन, ड्राफ्टिंग करी। 10 मार्क्स से क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, उसमें कोई कंटेंट नहीं चेक करता, उसमें केवल आपका नॉलेज बेस चेक किया जाता है। समझ में आ रहा है? ठहराव चेक किया जाता है 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पे, कि स्टेबिलिटी है कि नहीं कंटेंट में, माइंड स्टेबल है कि नहीं है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन तो खाली ऐसे वैसे ही बस चेक करने के लिए होता है, कुछ आता पता है, कुछ पता है इन लोगों को कि नहीं पता है, इज इट डन, इसके लिए होता है। तो उस हिसाब से आंसर ड्राफ्ट करिए। और एक बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट है, उसको कहीं लिख लो, देयर इज नो ब्यूटीफुल आंसर, there is no beautiful answer, there is always a relevant answer, there is always a relevant answer। इस बात को याद रखना। पहली बात तुमने क्या बताया, आंसर राइटिंग इज नॉट द कॉम्पिटिशन बिटवीन मोहम्मद रफी एंड किशोर कुमार, इट इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन हनी सिंह एंड बादशाह। देख लो कोई ना कोई इस समय सब हनी सिंह और बादशाह बने हुए हो, प्रूव किया कि नहीं किया, यस नो। तो एंड दूसरा क्या कोटेशन, देयर इज नो ब्यूटीफुल आंसर बिकॉज ब्यूटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स डेंजर। समझ में आया, ब्यूटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स डेंजर, है ना। सो देयर इज नो ब्यूटीफुल आंसर, देयर इज ऑलवेज अ रेलेवेंट आंसर। कैसा लगा, क्या बात बोल दी है। चलिए खैर, तो ड्राफ्टिंग करें क्या, शैल आई, चलिए शुरू करते हैं। पहला है इंडियन ओशन सी लेवल राइज। तो आप देखेंगे कि Indian oceans are rising at the rate 3.3 mm per year, ठीक है, 3.3 mm per year
which is relatively faster. सबसे पहला अटैक कर दिया. कैसा है पहला अटैक? परफेक्ट. यस और नो? दूसरा, राइजिंग sea level in IOR at a faster rate brings following concern, brings following impacts. अब impacts देखते हैं. इसका पहला impact है submergence of coastal cities and increased risk of flooding. है ना? जैसे कोलकाता, पारादीप, इसमें मेंशन करना विजाग, चेन्नई एक्सेट्रा. ये सिटीज का नाम मेंशन करने से दिमाग बिल्कुल हिट करेगा कि हाँ इन्हें पता है कि यहाँ कौन कौन सी कोस्टल सिटीज. उधर वाली भी कर सकते हो, मरमुगांव, वो वेस्टर्न कोस्ट के तरफ मरमुगांव एंड ऑल. इज इट डन? हमने इधर ईस्टर्न वाली कर दी है. दूसरा है इंक्रीज्ड कोस्टल इरोजन. फिर क्या होगा? इनफिल्ट्रेशन, या इनफिल्ट्रेशन ही लिखते हैं. यू कैन से दैट ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन. सॉइल सैलिनाइजेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? है ना? डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज फिर डैमेजेस टू कोस्टल इंफ्रा, फिर डैमेजेस टू कोस्टल इकोसिस्टम्स. जैसे एग्जाम्पल में सुंदरबंस, ये 80% सबमर्ज कर जाएगा. क्या बोला? बाय 2100 AD क्या कर जाएगा? कैसा लगा? कितने हेडर्स हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 और 7. हाँ है ना? 6 नंबर नहीं मिलेगा का? अरे कैसे नहीं देंगे? इसके अंदर का भी तो कंटेंट होगा. यस नो? फिर वो फैक्ट, ये देखो कलकत्ता वगैरह का, उधर वो 80% सबमर्जेंस. यस नो? एक आध कोई और फैक्ट रख देना, जैसे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, उसमें ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन के साथ साथ जो है ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस जोड़ देना. हाँ है ना? कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो आप समझ में आया कि हाउ टू राइट एन आंसर. तो राइटिंग एन आंसर इज अ डिफरेंट केक वॉक. यस नो? एंड स्टडिंग इन द क्लासरूम इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट. इसलिए अब जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ ये ऑब्जेक्टिविटीज को क्या रखिए. तो कैसा लगा सेशन? हाउ वाज द सेशन? तो आज हम आप पर कोई लोड नहीं दे रहे. आज आप इन्हीं 3 आंसर्स को बनाइए जाके. इज इट डन? और कल से आपका वो हम सिर्फ माइंड मैप पे चलेंगे. अब किस पे चलेंगे? ठीक है ना? हम ऐसे चलेंगे, हम आंसर नहीं लिखेंगे, हम माइंड मैप पे चलेंगे. इज इट डन? आप आंसर मैपिंग पे चलेंगे. इज इट डन? यस और नो? हाउ इज द जोश? अभी भी हाई नहीं हुआ ना तो मैं चला जाऊंगा. अरे जब सैलाई जो पानी है
समुंदर का पानी जब वो अंदर आएगा तो सॉइल से इनफिल्ट्रेट होके कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, सीपेज, तो वो ग्राउंड वाटर को क्या कर देगा। अच्छा, ये सब एक्टिविटीज हमारी इमेजिनेशन से थोड़ा बियॉन्ड है, मगर होता है। इज इट डन? इट इज ऑल हैपनिंग, इट इज ऑल हैपनिंग। इज इट डन? चलिए, ओके, थैंक्स टू ऑल।